Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Corporate finance students, today's lecture will be about the practice questions related to the topic of hybrid financing. In the previous lecture, we covered the theoretical aspects of this concept of hybrid financing, and in today's lecture, we'll be covering the different practice questions. Okay, one announcement is that we have started the month of Ramadan, the holy month of Ramadan. So Ramadan Mubarak to everyone. With this month, the schedule of the classes is changed. So our class will be taking place every Wednesday from 2 to 4 p.m. Okay? So kindly note down this time. Okay, change in time due to Ramadan. Second thing is, since in today's lecture we'll be covering the numericals part, so you need to change your style of listening to the lecture. आज के लिए थोड़ा सा आप इसको modify कर लें कि अगर आप थोड़ा सा इसका एहतमाम कर लेंगे इस लेक्चर को अटेंड करने का, तो it will give you more benefit. So try to grab your notebook, pen and calculator. ठीक है, ये तीन चीजें अपने पास रख लें और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते चले जाएं तो वो आप भी साथ साथ करते चले जाएं ताकि चीजें आपको क्लियर होती चली जाएं. खाली अगर आप सुनने पे इक्तफा करेंगे तो थिंग्स माइट नॉट बी वेरी क्लियर. ठीक है, फिर आपको उसमें काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं. सो आई गिव यू कपल ऑफ मिनट्स कि जी जल्दी से जाके अपनी नोटबुक, अपना पेन और अपना कैलकुलेटर जो है अपना साथ रख लें, एंड देन वी स्टार्ट दिस लेक्चर. So kindly do that ताकि you get full benefit from this lecture. Otherwise, a lot of queries will be there, and those queries will be difficult unless you solve them. Try to solve these questions with your own hand. Okay, so I hope everyone is ready. So let's start practice questions. The first practice question that we'll be discussing is about leasing. Question number one. Let's go through the detail of this question along with me. This question is related to leasing. Connors Construction needs a piece of equipment that can either be leased or purchased. The equipment costs $100. One option is to borrow $100 from a local bank and use the money to buy the equipment. The other option is to lease the equipment. If Connors chooses to lease the equipment, it would not capitalize the lease on the balance sheet. Below is the company's balance sheet prior to purchase or leasing of the equipment. So here's the very shorter version of the balance sheet given. Current assets, the total value of current assets is $300. Fixed assets is $500. Total assets is $800. Debt and equity both are $400. It means 50% debt and 50% equity. Total liabilities and equity is $800. Okay. So what we need to do in this question is, what would be the company's debt ratio if it chose to purchase the equipment? ठीक है जी, तो रिमेंबर के परचेज के लिए क्या ऑप्शन है? $100 दे विल बोरो एंड दे विल परचेज द इक्विपमेंट. तो बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा इसका कि $100 जो आप बोरो कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी एडेड इन योर डेट, एंड एट द सेम टाइम दिस $100 विल एड टू योर फिक्स्ड एसेट्स. ये दो वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी. Fixed assets will become 600 and your debt will also increase from 400 to 500. So let's see कि जी आपकी changes in balance sheet will be something like this कि आपने $100 fixed assets में ऐड कर दिया, 100 debt में ऐड कर दिया, so total assets are 900, total claims are 900. The company's debt ratio that we wanted to find here is debt to equity, debt to total assets. So debt is 500 and total assets 900. 55.6% is the company's debt ratio after the purchase of the equipment. If the company leases the asset and does not capitalize the lease, ठीक है, यानी वो लीज कर रहा है और उसको वो
बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा, तो फिर तो बैलेंस शीट सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज. सो पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द कंपनीज डेट रेशियो इट चूज टू लीज दैट. ठीक है, और लीज में उसने हमें बताया कि वो इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा, यानी वो इसको बैलेंस शीट में नहीं शो कर रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो देयर विल बी नो चेंज इन द बैलेंस शीट. सो इन दैट केस you will have 50% debt ratio. For 400 is debt and total asset, total liabilities or total assets you can say are 800 to 50%. The company's financial risk, assuming the implied interest rate on the lease is equivalent to the loan, is no different whether the equipment is leased or purchased. Okay, so फाइनेंशियल रिस्क में चेंज इसलिए नहीं आ रहा कि जो कंपनी जब कंपनी परचेज कर रही है तब भी वो बोरो करके परचेज कर रही है और लीजिंग भी लोन है, तो दोनों के केसेस के अंदर जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है दैट विल बी सेम. So this was the part C. What would the company's financial risk be different depending on whether the equipment was leased or purchased? So in this case, we can say that there will be no difference. दोनों सूरतों में उसका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो सेम ही रहेगा. Okay, so that's all about the question number one. Pretty simple question. Just to give you an idea, कि जी leasing how it affects, if it is the option, if it is off balance sheet, and if we are borrowing and purchasing the asset, how it is going to affect our balance sheet. Let's move to question number two. The question number two is related to warrants. Greg Company recently issued two types of bonds. The first issue consisted of 20-year straight, no warrants attached bonds with an 8% annual coupon. The second issue consisted of 20 years bond with a 6% annual coupon with warrants attached. Both bonds were issued at par. The par value is $1,000. What is the value of warrants that were attached to the second issue? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जी दो तरह के उनके बॉन्ड्स हैं. एक जो है वो उसमें देयर आर नो वारंट्स अटैच्ड टू इट, तो दैट इज इशूड फॉर 20 इयर्स और उस पे वो 8% कूपन दे एनुअल कूपन पे कर रहे हैं. जो सेकंड इशू है वो अगेन दैट इज आल्सो फॉर 20 इयर्स, लेकिन उसके अंदर जो है वारंट्स हैं और वारंट्स की वजह से दे आर एबल टू लॉन्च दैट बॉन्ड एट अ रेट ऑफ 6%. पार वैल्यू ऑफ बोथ द बॉन्ड्स इज 1000. तो अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि जो उन्होंने कैश जो सेकंड इशू है जिसमें वारंट्स अटैच्ड हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोस वारंट्स. Okay, let's see how we can determine the value of warrants which are attached to the second issue. First issue, that information is there, 20-year straight bond with an 8% annual coupon. Second year, 20 years bond with 6% annual coupon with warrants. Both bonds issued at par, $1,000, and we want to find the value of warrants. So what we can do to find out the value of warrants is that this second issue, $1,000 is the par value of the bond. ठीक है, 1000 में उन्होंने बॉन्ड सेल की है. अब ये जो 1000 उनको रिसीव हुआ है उसमें बॉन्ड की वैल्यू भी शामिल है और वारंट्स की वैल्यू भी शामिल है. तो इफ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये बॉन्ड की वैल्यू डिटरमिन कर लें तो देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वारंट्स. ठीक है ना, वो तो फिर सिंपल हो जाएगा कि वारंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 1000 में से बॉन्ड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वारंट्स की वैल्यू निकल आएगी. तो पहले अब हम देखते हैं कि इस बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकल सकती है. नाउ दिस सेकंड इशू, द this bond should be valued at 8% since we know the first issue sold at par. To determine its present value, then the value of the warrants can be determined as the difference between 1000 and the bond's present value. वही इस इक्वेशन के अंदर हमें अगर बॉन्ड की वैल्यू निकल आती है तो फिर हम वारंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बॉन्ड को डिटरमिन करने के लिए हम कह रहे हैं कि वी नीड टू यूज द कूपन रेट ऑफ 8%. तो 8% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें बॉन्ड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, so we can use the formula for present value of ordinary annuity which is equal to PMT, payment of annuity, 1 minus 1 divided by 1 plus I raised to the power n divided by I. अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सारी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं.
8% कूपन के हिसाब से 1000 का जो 8% बनता है दैट इज $80, तो वो हमने पीएमटी पेमेंट ऑफ एन्युटी ले लिया। 1 इज कांस्टेंट माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई आई हम यहाँ पे 8% ले रहे हैं। एन जो है वो 20 years है divided by I. So once we solve this equation, the present value of this bonds come to 785.5। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर बॉन्ड की वैल्यू हमने डाल दी, वारंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। So warrants is equal to 1000, which is the value of the par value of the bond minus the present value of this bond. So the difference is 214.5, which should be the value of the warrants. ठीक हो गया जी। तो this is how we can determine the value for warrants. If we know the value of bonds without warrants, then we can find out the value of warrants as well. Okay, so this question, question number 2 was related to warrants. Now let's move to question number 3. Peterson Securities recently issued convertible bonds with a 1000 par value. The bonds have a conversion price of $40 a share. What is the bonds conversion ratio? अच्छा जी, अब कंपनी ने ये किया है कि 1000 के बॉन्ड्स इशू किए हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स के अंदर। अगर बॉन्ड होल्डर कन्वर्ट करवाना चाहे तो वो इसके बदले $40 पर शेयर के हिसाब से शेयर्स ले सकता है। तो कन्वर्जन रेशियो हमारी क्या बन जाएगी? सो फॉर कन्वर्जन रेशियो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। कन्वर्जन रेशियो इज इक्वल टू पार वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन प्राइस। ठीक है, पार वैल्यू क्या है? बॉन्ड की 1000 है और कन्वर्जन प्राइस $40 है, तो इस हिसाब से कन्वर्जन रेशियो इज 25 शेयर्स। यानी हर बॉन्ड होल्डर को ही हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट हिज बॉन्ड इनटू 25 शेयर्स, क्योंकि एक शेयर वो $40 का उसको मिल रहा है, तो एक बॉन्ड को 25 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है इफ ही डिजायर्स टू डू सो। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन रेशियो का फॉर्मूला ये हमें वी नोट दिस फॉर्मूला एंड देन वी कैन फाइंड द कन्वर्जन रेशियो, par value divided by price, conversion price. Okay, question number 4 again is related to the balance sheet effects of leasing. Okay, let's see what this question is about. Two textile companies, McDaniel Edwards Manufacturing and Jordan Hawking Mills, began operations with identical balance sheets. A year later, both required additional manufacturing capacity at a cost of 200,000. McDaniel Edwards obtained a 5-year, 200,000 loan at an 8% interest rate from its bank. Jordan Hawking, on the other hand, decided to lease the required 200,000 capacity from National Leasing for 5 years. An 8% return was built into the lease. The balance sheet for each of company before the asset increases is as follows. ठीक है, दोनों की बैलेंस शीट सेम है, बट आफ्टर वी वांट टू सी द इफेक्ट के जी वो जो कंपनी मैकडेनियल एडवर्ड है वो बोरो करके 5 ईयर का लोन लेके 200,000 का वो ये इक्विपमेंट परचेज करती है, तो उसकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा। और जो दूसरी कंपनी है विच इज जॉर्डन हॉकिंग, जो कि वही इक्विपमेंट नेशनल लीजिंग से 5 ईयर की लीज पे ले रही है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। सो रिक्वायरमेंट्स आर शो द बैलेंस शीट ऑफ ईच फर्म आफ्टर द एसेट इंक्रीज एंड कैलकुलेट ईच फर्म्स न्यू डेट रेशियो। So here we are again assuming that Jordan Hawking's lease is kept off the balance sheet. ठीक है, तो अगर वो जॉर्डन हॉकिंग तो फिर यही सेम बैलेंस शीट आ जाएगी क्योंकि वो अपनी लीज को बैलेंस शीट में नहीं ला रहा। अलबत्ता जो मैकडैनियल एडवर्ड है उसकी बैलेंस शीट will change. So this is balance sheet before the lease is capitalized for McDaniel Edwards, and here you can see that McDaniel Edward is taking the loan
अच्छा 200,000 का लोन लिया तो 200,000 के एसेट्स में इंक्रीज हो गया, 400,000 से एसेट बढ़कर 600,000 पे चले गए, और दूसरी चीज लोन उनका 200,000 से बढ़ के 400,000 पे आ गया। तो यही चीज आप उनकी बैलेंस शीट में देख लें, डेट 400,000 हो गया, टोटल एसेट 600 हो गए। Debt ratio is debt to total assets, debt 400, total assets is 600. So their debt to total asset is 67%. अच्छा जॉर्डन हॉकिंग बैलेंस शीट देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, उन्होंने जो लीज पे एक वो मशीनरी ली है, दे हैव केप्ट इट ऑफ बैलेंस शीट पे नहीं शो कर रहे, तो देयर डेट रेशियो विल बी 50%। दिस इज वही हमने जो भी बात की कि जो जॉर्डन हॉकिंग है वो बोरो कर रहा है, तो sorry, okay, so this is both the companies. Part A, Part B show how Jordan Hawking's balance sheet would have looked immediately after the financing if it had capitalized the lease. Part B में, Part A में तो हमने कहा कि वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा था, देयर इज नो चेंज फॉर जॉर्डन हॉकिंग। लेकिन पार्ट बी में हम कह रहे हैं कि वो इसको कैपिटलाइज कर रहा है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? दिस 200 will be here shown in the assets as the value of leased assets, और 200 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एज पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो डेट रेशियो विल बी द सेम एज द मैकडैनियल एडवर्ड्स बैलेंस शीट। Would the rate of return on assets and on equity be affected by the choice of financing, and how? So this is part C. So perhaps net income as reported might well be less under leasing because the lease payment might be larger than the interest expense plus reported depreciation. Additionally, total assets are significantly less under leasing without capitalization. The net result is difficult to predict, but we can state positively that both return on asset and return on equity are affected by the choice of financing. ठीक है, whether you so leasing with capitalization or leasing without capitalization, both obviously it both are going to affect। जैसे हमने यहाँ देखा बैलेंस शीट, लीजिंग विद कैपिटलाइजेशन जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू लीजिंग विदाउट, ये जो नीचे वाली है विदाउट कैपिटलाइजेशन है, और जो नेक्स्ट है ऑन पार्ट बी दिस इज द बैलेंस शीट विद कैपिटलाइजेशन। तो ऑब्वियसली जब बैलेंस शीट दोनों की डिफरेंट आएगी तो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी चेंज होगा, इट विल नॉट be the same, it is going to be affected by the choice of financing. So that's all about question number 4. Let's move to one of little challenging question, which is the lease analysis. Now here we have to compare the two situations, whether the company should lease or whether the company should borrow and purchase. So we have to calculate the cost of owning and the cost of leasing, and then we can compare the two costs to find net advantage of leasing. So let's go through this question along with me. The Olson company has decided to acquire a new truck. One alternative is to lease the truck on a 4-year contract for a lease payment of 10,000 per year, with payments to be made at the beginning of each year. The lease would include maintenance. Alternatively, Olson could purchase the truck outright for $40,000, financing with a bank loan for the net purchase price, amortized over a 4-year period at an interest rate of 10% per year, payments to be made at the end of each year. Under the borrow to purchase arrangement, Olson would have to maintain the truck at a cost of $1,000 per year, payable at year end. The truck falls into Macker's 3-year class. The applicable Macker's depreciation rates are 33, 45, 15, and 7%.
It has a salvage value of $10,000, which is expected market value after 4 years, at which time Olson plans to replace the truck irrespective of whether it leases or buys. Olson has a federal plus state tax rate of 40%. ठीक है जी, तो ये सारी दोनों का सिनेरियो उन्होंने बता दिया कि लीजिंग की क्या सिचुएशन है। लीजिंग के अंदर जो है द कंपनी हैज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 years and they have to pay 10,000 per year at the start of each year. This $10,000 payment will include the maintenance. So in case of leasing, the scenario is simple कि जी 10,000 each year the payment has to be made at the start of each year. जबकि बाइंग बोरो एंड बाय के अंदर जो है कुछ हमें वेरिएबल्स एडिशनल देखने पड़ेंगे। नंबर 1 इज लोन की पेमेंट है जो हमें जिसको 4 year पीरियड में हमने पे करना है, उस पर इंटरेस्ट रेट 10% हमें पे करना है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 1,000 पर ईयर, और तीसरी चीज हमारे पास डेप्रिसिएशन भी उसके ऊपर चार्ज होगी। सैल्वेज वैल्यू को देखना होगा। तो ये सारी चीजें हमें सामने रखते हुए व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 10,000 पर ईयर एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर उसने पे करना था, ठीक है जी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने वो 10,000, क्योंकि उस 10,000 की जो पेमेंट करेगा, लीज की पेमेंट करेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट, और उसकी वजह से कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलेगा। टैक्स रेट 40% है, तो हम उस आफ्टर टैक्स जो है ना उसका इफेक्ट देख रहे हैं। यानी वो हमें 10,000 की जो पेमेंट हम पर ईयर कर रहे हैं वो एक्चुअली 10,000 नहीं, वो 6,000 हो जाएगी, इसलिए कि 40% तो उसमें हमें टैक्स का एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6,000 लिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ आफ्टर टैक्स पेमेंट इज कैलकुलेटेड। 10,000 1 माइनस टी, तो 10,000 पर ईयर था, 1 माइनस टी मीन्स 1 माइनस टैक्स रेट, वो 0.6 आ जाता है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज 6,000। सो 6,000 लीज पेमेंट आफ्टर टैक्स at the beginning of each year for next 4 years. अच्छा जी, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सिंस द पेमेंट इज अकरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तो ये एन्युटी ड्यू बन जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसके अंदर फिर हमने 1 प्लस आई से उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 22,038 वैल्यू आ गई, ठीक है। वही वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी ड्यू, और दिस इज द कॉस्ट ऑफ लीजिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लीजिंग कितनी पड़ रही है हमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लीजिंग हमें जो हमने कैलकुलेट किया वो दैट इज 22,038। ओके, so that was the part A. Now part B, what is Olson's present value cost of owning, ठीक है। शुड द ट्रक बी लीज्ड और परचेज, तो पहले हम इसकी कॉस्ट ऑफ ओनिंग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसका हम देख लेंगे कि जी कौन सी कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। सो विच एवर कॉस्ट इज लेसर दैट वी विल रिकमेंड कि जी इस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए। सो लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ओनिंग। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ ओनिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्शन, जो हमारे पास वेरिएबल्स हमें कंसिडर करने हैं, नंबर 1 we have to pay 40,000 for the purchase, ठीक है। that is our net purchase, 40,000 राइट अवे हमें पे करने हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें उसने कहा कि जी हमें डेप्रिसिएशन हमारी, तो डेप्रिसिएशन यहाँ हमने कैलकुलेट कर ली कि 40,000 हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट है। 33% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, 45% सेकेंड ईयर में, 15% थर्ड ईयर में, और 7% फोर्थ ईयर में। तो ये इस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। फर्स्ट ईयर में 13,200, सेकंड में 18,000, थर्ड में 6,000 एंड फोर्थ में 2,800, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन मैकर्स रेट, वो जो पीछे उन्होंने क्वेश्चन में मैकर्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं
33% फर्स्ट ईयर, 45% सेकेंड, वो वाला हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के ऊपर भी हमें टैक्स की, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो उसकी वजह से हमें टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो वो टैक्स एडवांटेज कितना मिलेगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, वट एवर इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टैक्स रेट इज 40%। तो डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग आ गया। इस तरह से 18,000 था, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 6,000 का इसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और 2800 मल्टीप्लाइज 0.4 इज 1120। ठीक है, तो ये सेकंड कैलकुलेशन। पहली वाली में तो सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो हमने स्ट्रेट अवे कॉस्ट डाल दी। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट की और फिर उसकी डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स लेनी है। ठीक है, तो ये अमाउंट दो स्टेप्स में आई है, इधर इसको देख लें। पहले स्टेप में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की और फिर हमने डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स यहाँ पर लेकर आए। अच्छा जी, थर्ड स्टेप जो है, तीसरी चीज इसमें था जी कि मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 1000 है, लेकिन जब हम उस मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो उस पर हमें 40% एडवांटेज मिल रहा है टैक्स का। तो फिर वो 1000 नहीं रही, बल्कि उसमें इट विल बी 60% ऑफ दैट। तो वो हमने 600 600 600 600 फॉर ईच ऑफ द 4 ईयर्स यहाँ पे वो अमाउंट ली है। दो चीजें हो गई, डेप्रिसिएशन टैक्स एडवांटेज हो गया, मेंटेनेंस। तीसरी चीज उसने कहा कि जी सेल्वेज वैल्यू जो है, वो सेल्वेज वैल्यू उसने कहा 10,000 है जो हमें ईयर एंड पे मिलेगी। तो 10,000 जो हमें मिलेगी उस पर 40% टैक्स है, तो एक्चुअल वो हमें जो सेल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स आ जाएगी वो 6,000 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इनको ऐड कर लिया। Now this 5,280 is at plus, this is 600 is minus, ब्रैकेट में शो हो रहा है। मेंटेनेंस आफ्टर टैक्स ये पे कर है ना, ये टैक्स सेविंग हमें रिसीव हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमने पे करनी है तो नेगेटिव साइन के साथ। तो इनका डिफरेंस 4680 आ गया। 7200 टैक्स सेविंग और मेंटेनेंस 600 माइनस किया तो 6600। 2400 माइनस 600 इज 1800। अब यहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक आपके पास डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग आ रहा है, दूसरा आपके पास सेल्वेज वैल्यू आ रही है। यानी सेल्वेज वैल्यू मीन्स हमने ये इतने इस प्राइस पे सेल कर दिया, 10,000 पे सेल किया, उस पर 40% टैक्स जो है वो निकल गया, तो हमें जो है 6,000 अमाउंट मिली। तो ये दोनों हमने ऐड कर ली, 6,000 प्लस 1120, उसमें से ये 600 माइनस किया तो 6,520 आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू फॉर दिस, प्रेजेंट वैल्यू फॉर दिस एंड प्रेजेंट वैल्यू फॉर दिस। तो ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस 40,000 के साथ, यानी 40,000 है नेगेटिव है क्योंकि ये पेमेंट हुई है, बाकी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हैं। तो वो पॉजिटिव वैल्यू सारी ऐड होके इसमें से माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनिंग जो हमें पड़ रही है 23,325 पड़ रही है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि अपना आप रजिस्टर, अपना पेन और कैलकुलेटर साथ रखें। तो ये थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रही है तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लेंगे जी ये 23,035 कैसे आया है। ठीक है, टेक कपल ऑफ मिनट्स, 2-4 मिनट में ये कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला आपने लगाना है PV इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस I रेज टू द पावर n, जो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर 6600 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर 1800 की कैलकुलेट करें, फिर 6520 की कैलकुलेट करें। चलें शाबाश, जल्दी जल्दी ये अपने रजिस्टर पे करते जाएं ताकि आपको खुद भी क्लियर होता जाए कि वैल्यूज ये 23,035 कैसे आया। ठीक है जी, आई 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 कैन वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स कि आप ये कैलकुलेट कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये 23,035 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई।
जी हो गया जी। चलें जी, अगर आपकी ये वैल्यू आ गई तो गुड, अगर नहीं आई तो उसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कैलकुलेशंस, तो उसको आप दोबारा से करके देख लें। और इन सब की अपने प्रेजेंट वैल्यूज इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उनको ऐड करके 40,000 के साथ माइनस करेंगे तो दिस -23,035 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि जी वेदर द कंपनी शुड गो फॉर लीजिंग और शुड द कंपनी परचेज दिस इक्विपमेंट। अब कॉस्ट ऑफ ओनिंग अगर आप देखें तो वो 23,035 है, और कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो था वो 22,000 था। कॉस्ट ऑफ लीजिंग कम है, दोनों का डिफरेंस है वो 997 जो है वो आप सेव कर सकते हैं बाय लीजिंग दिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो देयरफॉर वी सजेस्ट दैट द कंपनी शुड लीज दिस इक्विपमेंट। ठीक है, नेट एडवांटेज टू लीजिंग जो है वो आ रहा है 997। सिंपल है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग माइनस कॉस्ट ऑफ लीजिंग, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज योर नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग। सो दैट वाज पार्ट बी। सी में क्या है जी? The salvage value is the least certain cash flow in the analysis. How might Olson incorporate the higher riskiness of this cash flow into the analysis? ठीक है, salvage value को किस तरीके से हम treat कर सकते हैं? Part C of this question. Now, the discount rate is based on the total cost of debt because most cash flows are fixed by contract and consequently are relatively certain. Thus, the lease cash flows have about the same risk as the firm's debt. Also, leasing is considered to be a substitute for debt. We use an after-tax cost rate because the cash flows are stated net of taxes. Okay, as far as the question is of uh, salvage value is concerned, the firm could increase discount rate on the salvage value cash flow। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कैश फ्लो। सैलरी वैल्यू आपने एक अंदाजा लगाया है, आपका अंदाजा है कि यार 10,000 हमारा आफ्टर 4 इयर्स इसकी जो मशीनरी की सैलरी वैल्यू होगी वो $10,000 होगी। नाउ इट इज एन एस्टिमेट, तो ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, यानी इसके अंदर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट वी कैन इंक्रीज द डिस्काउंट रेट ऑन दिस सैलवेज वैल्यू। ठीक है, बजाय जो हमने पीछे रेट अप्लाई किया, ठीक है, उस रेट से ज्यादा रेट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 6% लिया था रेट, तो वो 6% की बजाय हम यहाँ पे ज्यादा रेट ले सकते हैं। दिस वुड इंक्रीज, अच्छा लेकिन उससे होगा ये कि जब आप ज्यादा डिस्काउंट रेट लेंगे तो दिस वुड इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेक लीजिंग इवन मोर एडवांटेजेस। ठीक है, ये तो सैलवेज वैल्यू का सवाल हमारे पास आ रहा है या इश्यू आ रहा है जब हम इसको परचेज कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी सैलरी वैल्यू और कम कर देंगे तो इससे कॉस्ट ऑफ ओनिंग और बढ़ जाएगी, एंड द रिजल्ट वुड बी कि आपकी कॉस्ट ऑफ लीजिंग या आपकी लीजिंग विल बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव फॉर द फर्म। ओके जी, so that was about question number 5. Question number 6, little lengthier question. Morris Meyer Mining Company must install 1.5 million of new machinery in its Nevada mine. It can obtain a bank loan for 100% of the required amount. Alternatively, a Nevada investment banking firm that represents a group of investors believe that it can arrange for a lease financing plan. Assume that the following facts apply. The equipment falls in the Makers 3-year class. The applicable Makers rate are 33, 45, 15 and 7%. ठीक है, तो मशीनरी जो कंपनी परचेज करना चाह रही है उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ये वाले लगेंगे। फर्स्ट ईयर में 33%, सेकंड में 45%, थर्ड में 15% एंड फोर्थ में 7%। एस्टिमेटेड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर 75,000 पर ईयर। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर उसको पड़ेगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वुड बी 75,000 पर ईयर।
Morris Mayer's federal plus state tax rate is 40%. Number 4, if the money is borrowed, the bank loan will be at a rate of 15%, amortized in 4 equal installments to be paid at the end of each year. ठीक है, अगर वो कंपनी 1.5 मिलियन बोरो करती है तो उसको 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करना होगा, जिसपे लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% आ रहा है. The tentative lease terms call for end of year payments of 400,000 per year for 4 years. ठीक है, अगर वो लीज करवाती है कंपनी तो उनको 400,000 per year पे करने पड़ेंगे for next 4 years. Under the proposed lease terms, the lessee must pay for insurance, property taxes and maintenance. तो ये सारे लीज एग्रीमेंट के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लाइंट के या लेसी के हैं कि उस इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस भी उसी के जिम्मे है. Morris Mayer must use the equipment if it is to continue in business, so it will almost certainly want to acquire the property at the end of the lease. If it does, then under the lease terms, it can purchase the machinery at its fair market value at that time. The best estimate of this market value is the 250,000 salvage value, but it could be much higher or lower under certain circumstances. अगेन जैसे हमने पहले बात की कि जी एक सैलवेज वैल्यू तो एक एस्टिमेट है, तो कंपनी का एस्टिमेट ये है कि जी आफ्टर 4 years द सैलवेज वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी विल बी 250,000. अगर कंपनी परचेज करेगी तो उसको ये पेमेंट करनी होगी फॉर परचेजिंग. अगर लीज के अंदर if the company has opted for the lease, so at the end of the lease if the company want to purchase तो 250,000 पे करके कंपनी उसकी ओनरशिप ले सकती है. Okay. Now, the requirements for this question are to assist management in making the proper lease versus buy decision. You are asked to answer the following questions. Assume that the lease can be arranged. Should Morris Meyer lease or should it borrow and buy the equipment? अच्छा जी, तो पहले तो हमने लीज और बोरो टू बाय वाला एनालिसिस कंडक्ट करना है. तो लेट्स सी कि जी हमारे पास लीज कॉस्ट ऑफ ओनिंग क्या आ रही है. अगर हम ये इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं तो परचेज की सूरत में हमने कहा कि जी कंपनी हैज टू पे 1.5 मिलियन, दैट इज द परचेज प्राइस. डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट विल बी अकॉर्डिंग टू मैकर्स 3 year क्लास. जो रेट्स हमें दिए हुए थे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी. और हेयर वी आर कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग. जो भी इस पीरियड का डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव अस टैक्स सेविंग फॉर अगेंस्ट डेप्रिसिएशन. और तीसरी चीज नेट कैश फ्लो. अच्छा, अब हमने क्या किया कि जी यही दो हमारी इसमें इन केस ऑफ ओनिंग तो हमारे पास ये दो ही चीजें आ रही हैं कि जी एक हमने उसको परचेज करना है 1.5 मिलियन के हिसाब से और दूसरा हमें उस पर 4 साल में टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी. तो व्हाट वुड बी द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओनिंग 1.5 मिलियन, तो 1.5 मिलियन रह जाएगा. 198 जो है ये जो 198 हमने लिया है, ये जो हमें टैक्स सेविंग हो रही है एट द एंड ऑफ ईयर 1, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इसी तरह से 270,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 90,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी और 42,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी. तो अगेन आई गिव यू कपल ऑफ मिनट्स हियर कि जी आप खुद इसको सॉल्व करके देख लें, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा लें. रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n. तो उस हिसाब से ये हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लें एट ईयर. डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग की ईयर 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 3 पे, 4 पे. ये चारों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज जो भी आएंगे उनको ऐड कर लेंगे और कॉस्ट जो हमने पे की उसमें से माइनस कर देंगे टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनिंग एट 9%. हाँ, ये ध्यान में रखें कि हम यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट ले रहे हैं, जो टैक्स इंटरेस्ट रेट कंसिडर कर रहे हैं वो 9% कर रहे हैं.
ठीक है, ऑल्दो कि यहाँ पे 15% था, लेकिन हमने ये टैक्स आफ्टर टैक्स वाला रेट लिया, इसलिए हम यहाँ पे 9% ले रहे हैं। जी, try to calculate these values using your pen, copy, calculator. चलें जी, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ ओनिंग आ गया 991845। नाउ कॉस्ट ऑफ लीजिंग, अच्छा जी, लीज पेमेंट जो थी वो हमें ये बताया गया था क्वेश्चन के अंदर के उसको पर ईयर जो लीज की पेमेंट करनी है दैट इज 400,000। ठीक है, लीज पेमेंट 400,000 पर ईयर फॉर 4 ईयर्स है, लेकिन हम यहाँ पे जो लीज की पेमेंट कंसिडर करते हैं वो आफ्टर टैक्स वाली लेंगे ना, तो 400,000 आफ्टर टैक्स, इस पे 40% टैक्स माइनस कर दें, यानी 60% उसकी ले लें आप। 400,000 का 60% ले लें तो वो 240,000 आता है, तो वो हमने 240,000 वाली वैल्यू ली है। एक तो हमें लीज पेमेंट करनी है, दूसरी हमने कहा कि जी वो अगर वो परचेज करता है एट द एंड ऑफ ईयर 4, तो सेल्वेज वैल्यू जो है उसके हिसाब से उसको परचेज कर सकता है। सेल्वेज वैल्यू 250,000 थी। रादर जो परचेज प्राइस दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, जरा एक दफा देख लें, व्हाट इज द ऑप्शन टू परचेज, वो 250,000 है सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो अब ये 250,000 जो हमें परचेज करना है वो ये है, तो नेट कैश फ्लोज क्या हो गए, 240,000 नेगेटिव, 240,000 नेगेटिव, 240,000 नेगेटिव एंड 490,000 नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इन सारी वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यूज खुद कैलकुलेट करनी होगी, तो एक मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी कि जी 240,000 जो हमें एट द एंड ऑफ ईयर 1 मिल रहा है, 240,000 1 प्लस 1.099% डिस्काउंट रेट है एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो वो हमारे पास 220,183.48। अब इसी तरह 240,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2 जो मिलेगा उसमें ये n चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 1 ये 2 हो जाएगा, और 240,000 at the end of year 3, again here the value for n is will be changed, और then 490,000 जो हमें at the end of year 4 मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी हम इस तरीके से कैलकुलेट करें। जी कर लें, जरा खुद से करके कोशिश करें कि क्या आंसर आता है, क्या वैल्यूज आती हैं, एंड देन वी कैन कंपेयर इट with the answers that I have got. Okay जी, so this should be 954,639, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है, ये वैल्यू इन सारे कैश फ्लोज की इंडिविजुअल वैल्यूज हमने कैलकुलेट की और उनको प्लस कर दी। So we have calculated the cost of owning first, which is 991,845, and then we have calculated the cost of leasing 954। कॉस्ट ऑफ लीजिंग हमें कम नजर आ रही है, जिसको हम आगे कंफर्म भी कर लेते हैं नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ ओनिंग जो है 991,84991 है, कॉस्ट ऑफ लीजिंग 954 है,
So here you can say the net advantage of leasing is 37,206. So it's better for the company to lease rather than to purchase. Okay, ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है वो यहाँ पे इस टेबल में आपको बता दी गई है कि डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट की गई है. 1.5 मिलियन के एसेट्स थे, 33% फर्स्ट ईयर में, 45% सेकेंड ईयर में, 15% थर्ड ईयर में, 7% फोर्थ ईयर में. ये डेप्रिसिएशन आ गई. इस पे टैक्स सेविंग के लिए हमने क्या किया, इस डेप्रिसिएशन को 40% से मल्टीप्लाई कर. सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 40%, विच इज द टैक्स रेट टू गेट द डेप्रिसिएशन टैक्स. ठीक है, तो ये वो डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग कैसे आ गई. Note that the maintenance expense is excluded from the analysis since Morris Mayer will have to bear the cost whether it buys or lease the equipment. अच्छा, हमने यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट को दोनों एनालिसिस में नहीं लिया, इसलिए कि दोनों सूरतों में मेंटेनेंस कॉस्ट तो कंपनी को, मॉरिस मेयर को ही बेयर करनी पड़ रही है. तो इसलिए इट विल दिस सिचुएशन विल नॉट चेंज. ठीक है, यही रहेगी. अगर आप इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कंसिडर भी कर लेते हैं तो स्टिल इट विल बी द सेम सिचुएशन. व्हाई? बिकॉज इन बोथ द केसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू बी बोर्न बाय द मॉरिस मेयर, या क्लाइंट को पे करनी पड़ रही है, इसलिए वो आपकी जो नेट कॉस्ट आ रही है उसको उस पर फर्क नहीं आएगा. Since the cost of leasing of machinery less than the cost of owning, Morris Mayer leased the equipment. ठीक है, वो हमने यहाँ पे कंक्लूजन यही कर लिया. ओके, पार्ट बी में क्या था जी. Assume, अच्छा ये तो हमने कर लिया कि assuming that the lease can be arranged, should Morris Mayer lease or should it borrow, वो तो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन करके उसको आंसर कर दिया. पार्ट सी, consider 250,000 estimated salvage value. Is it appropriate to discount it at the same rate as other cash flows? What about other cash flows? Are they equally risky? ये थोड़ा सा theoretical part है, तो थ्योरी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी थ्योरी में दिया हुआ है. We assume that Morris Meyer will buy the equipment at the end of 4 years if the lease plan is used, hence the 250,000 is added cost under leasing. We discounted it at 9%, but it is risky, so should we use a higher rate? If we do, leasing looks even better. जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर हम यहाँ पे हायर रेट लेंगे तो फिर उससे लीजिंग और बेहतर हो जाए, लीजिंग का जो एडवांटेज है वो और बढ़ जाएगा. However, it really makes sense in this instance to use a lower rate so as to penalize the lease decision, because the residual value uncertainty increases the uncertainty of operations under the lease alternative. In general, for risk averse decision makers, it makes intuitive sense to discount riskier future inflows at a higher rate, but risky future outflows at a lower rate. Note that if Morris Mayer did not plan to continue using the equipment, then the 250,000 salvage value less taxes should be positive inflow in the cost of owning analysis. In this case, it would be appropriate to use a higher discount rate. ठीक है, ये यानी वो डिफरेंस ये है कि क्या वो 250,000 एट द एंड ऑफ द ईयर सैल्वेज वैल्यू पे करके एसेट परचेज करना चाह रहा है या उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है. तो दोनों के केस में फिर जो है सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी. यहाँ पे चूंकि कंपनी उसको परचेज करना चाह रही है तो इट वुड बी इट वुड मेक मोर सेंस कि जी हम हायर रेट अप्लाई करें. और सॉरी टू यूज इस केस में इट वुड मेक मोर सेंस इफ वी यूज आर लोअर रेट सो एज टू पेनलाइज द लीज डिसीजन. लेकिन अगर कंपनी ने इसको
डिस्पोज ऑफ करना हो, खरीदना ना हो, तो फिर उस सूरत में हम वहाँ पे उसको हायर रेट विल बी मोर बेटर. द कैश फ्लोज फॉर बोरिंग एंड लीजिंग एक्सेप्ट फॉर द रिस्की value residual value cash flow are relatively certain because they are fixed by contract and thus are not very risky. ठीक है, तो इसमें जो भी हमने एनालिसिस किया उसमें सिर्फ एक ही अनसर्टेन एलिमेंट है, वो रेजिडुअल वैल्यू का. बाकी सारे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती. Okay, so let's move to question number 7. A convertible bond has a par value of 1000 and a conversion price of $50. The stock currently trades for $35 a share. What are the bond's conversion value and conversion ratio at t is equal to 0? So conversion ratio and conversion value you have to calculate. So I'm not going to solve it. You people use the formulas that were discussed in the theory part. एक क्वेश्चन हमने इस पे किया भी है, तो उसको सामने रख के आंसर कर लें. Try to answer this question, and once we will be having our session for queries during the class, most probably आज 3 बजे के करीब हम गूगल मीट पे जो स्टूडेंट्स जो है आना चाहें और अपनी उनकी कोई क्यूरीज भी होंगी तो दैट कैन बी एड्रेस्ड, तो दे कैन ज्वाइन फॉर द क्लास एट अराउंड 3. तो ये क्वेश्चन भी कर लें वहाँ पे, इसको फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे कि जी आपका आंसर क्या है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आंसर नहीं किया इंटेंशनली बिकॉज आई वांट यू पीपल टू सॉल्व इट, तो उसको भी देख लें. A company recently issued bonds with attached warrants. The bond plus warrant package sells at a price equal to its 1000 face value. The bond mature in 10 years and have a 6% annual coupon. The company also has a 10-year straight bond with no warrants attached outstanding. The straight debt has a yield to maturity of 8%. What is the straight debt value of the bonds? What is the value of warrants? ठीक है जी, तो ये दो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, यहाँ पे वही सिचुएशन है कि एक कंपनी के पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं. एक जो है वो स्ट्रेट बॉन्ड है जिसपे कोई वारंट्स नहीं है, वो 8% उस पे जो है वो यील्ड टू मैच्योरिटी मिल रही है. और जबकि दूसरा जो बॉन्ड है वो 6% कूपन रेट के साथ सेल हो रहा है और उसकी मैच्योरिटी 10 years है. फेस वैल्यू दोनों बॉन्ड्स की 1000 है. So you have to calculate the value of the warrants as well as the value of the bonds. ठीक है जी, तो I have I will share the solution. You people try to solve it yourself. खुद करें, देखें क्या आंसर आता है और फिर हम इसका आंसर मैच कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे in the session that will be taking place today at around 3. ठीक है, so that half an hour session or 30-40 minute session that we'll be having today is with respect to the queries if related to today's part, कि जी आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसमें जो आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कंफ्यूजन हो, तो दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द Google Meet class. Okay, so with this, I come to the conclusion of my lecture for today. We did a few questions related to the topic of hybrid financing, and as I told you, try to do the practice of these questions, try to solve them yourself and see the answers they match with the answer which are provided in the lecture. So here we conclude the today's lecture. Thank you very much for bearing me. और ये क्वेश्चंस आप करें फिर इंशाल्लाह इसके जो भी क्यूरीज होंगे दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द Google Meet session at around 3 today. Thank you very much.